अब नेक्स्ट लिखो मैथमेटिकल मॉडल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन. मैथमेटिकल मॉडल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन. मैथमेटिकल मॉडल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन. ये ऑब्जर्वर है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो दिस विल बी पोजीशन वेक्टर एट एनी टाइम t. पोजीशन वेक्टर ही हम लोग डिस्कस किए थे ना. r इक्वल टू, यहां क्या लिखोगे? r विल हैव हाउ मेनी कंपोनेंट? वन, क्या? x I कैप. ठीक है. What about velocity? When you differentiate position vector, what you get? Velocity. Velocity किस तरफ हो सकता है, यहाँ बताओ जरा. अगर पार्टिकल का मोशन वन डायमेंशनल है तो वेलोसिटी क्या होगा? I mean सेम और either same or either parallel or, so velocity has only one component Vx I cap. And what about acceleration? ऐसा नहीं होगा. लास्ट क्लास याद करो, वेलोसिटी कैसे हम लोग डिफाइन किए थे? एक्सेलरेशन dv by dt. Write this you know. In one dimensional motion, how much is r equal to? r will have how many component? Only one. ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना. तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं d by dt of x I cap. d by dt of x I cap. What is this I cap? Variable or constant? So outside derivative, you are left with what? dx by dt. Now, rate of change of position vector is velocity. Rate of change of x component of position vector will give you velocity or x component of velocity. So what you get? I cap into Vx. So velocity is equal to how much? Vx I cap. This is equal to Vx I cap. Similarly, acceleration. D, you are differentiating what? Velocity or x component of velocity? If you differentiate velocity, what you get? So if you differentiate x component of velocity, what you will get? X component of acceleration, isn't it? If you differentiate velocity, you are getting acceleration. So if you will differentiate x component of velocity, क्या मिलेगा? X component of acceleration. So point is, ऐसे देखो ना, अगर one dimensional, forget about this mathematics for a moment. If you say कि motion one dimensional है, if you say motion one dimensional है, तो कैसा path होगा? Straight line, ये तो fixed है. मान लो ऐसा path. Most simple example is, एक बॉल को तुम vertically project कर दिए, तो कैसा path दिख रहा है? Straight line. सोच के बताना, किस direction में वो move कर रहा है? So, this is direction of velocity or not? यही velocity का भी direction है. Position भी इसी direction में change हो रहा है. और acceleration किस तरफ है? Acceleration is g or not, किस तरफ है वो? तो parallel या anti parallel? तो क्या direction है r का, v का और a का? Either parallel or anti parallel. Either parallel or anti parallel. So if position vector has only x component, तो velocity का भी केवल कौन सा component होगा? x. और acceleration का भी कौन सा होगा? x component. तो ये चीज बताओ जरा, अब तक हम लोग वेक्टर यूज कर रहे थे किसी भी मोशन में. कौन कौन सा वेक्टर था? r वेक्टर और क्या था? एंड a वेक्टर.
ये है 3 वेक्टर जो तुम यूज करते हो इन वन डायमेंशनल मोशन। ठीक से अब सोच के बताना, कोई डायग्राम नहीं है, कुछ भी नहीं। इन वन डायमेंशनल मोशन दिस आर वेक्टर हैज हाउ मेनी पॉसिबल डायरेक्शन? सपोज मोशन इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो आर किस किस तरफ हो सकता है? आइदर प्लस एक्स और, तो ऐसा लिखो तो इन वन डायमेंशनल मोशन, इन वन डायमेंशनल मोशन, फर्स्ट लिखो वेक्टर आर, नंबर 1 वेक्टर आर हैज हाउ मेनी डायरेक्शन? क्या लिखोगे? 2 पॉसिबल डायरेक्शंस, 2 possible directions, and those 2 directions are opposite, and those 2 directions are opposite. ये भी क्लियर है? Those 2 directions are opposite. Second, सोच के बताओ, velocity vector has how many possible direction? 2. Has how many possible direction? 2. Or those 2 directions are what? If particle is moving in this direction, तो कितना डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का? इस तरफ जा सकता है पार्टिकल, किसके अलॉन्ग मूव करना ही होगा उसको, इसी लाइन के अलॉन्ग। तो ये इस तरफ भी जा सकता है और वापस भी आ सकता है, तो हाउ मेनी डायरेक्शन? एंड दोस 2 डायरेक्शंस आर व्हाट? Opposite. Those 2 directions are opposite. And third, acceleration vector. How many possible direction? 1. We are talking about possibilities. जैसे बहुत सारे केस में ये हो सकता है ना कि तो पार्टिकल तुम्हारा इस तरफ मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन किधर है? ऑपोजिट. ये भी हो सकता है ना कि वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन भी किधर है? सेम डायरेक्शन. सपोज ऐसा कंसिडर करते हैं, एक ट्रेन इज मूविंग, व्हेन ट्रेन बिगिंस, आई मीन इट्स मोशन, तो ट्रेन का मोशन क्या है? एक्सेलरेटेड है. किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ट्रेन का? इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. और जब ट्रेन को रुकना है तो ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक, जब ब्रेक अप्लाई किया तो किधर है एक्सेलरेशन? किसके ऑपोजिट? वेलोसिटी के. तो है तो वन डायमेंशनल मोशन, लेकिन एक्सेलरेशन का कितना डायरेक्शन हो सकता है? 2 डायरेक्शन. एक सिचुएशन में एक ही होगा, लेकिन उसी मोशन में क्या पॉसिबल है? 2 डायरेक्शन हो सकता है ना. और वो दोनों डायरेक्शन क्या है? फिर से ऑपोजिट. दोस 2 डायरेक्शंस आर ऑपोजिट. तो क्या कंक्लूड करें? क्या कंक्लूड करें? इन वन डायमेंशनल मोशन, ऐसा कंक्लूड करो, इन वन डायमेंशनल मोशन these vectors has, in one dimensional motion these vectors has 2 possible directions, and those 2 directions are opposite, and those 2 directions are opposite, and those 2 directions are opposite. ठीक है. अब सोच के तुमको बताना है. नेक्स्ट लाइन एक लिखो, वेक्टर हैज 2 possible direction, vector has 2 possible directions, and those 2 directions are opposite. Those 2 directions are opposite. This means what? वेक्टर का 2 पॉसिबल डायरेक्शन है और दोनों क्या है? ऑपोजिट. इसका क्या मतलब हुआ? यू आर डीलिंग विथ वेक्टर और कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर. If I say x component of a vector, सोच के देखो, if I say vector, तो वेक्टर का क्या डायरेक्शन हो सकता है? वेक्टर का डायरेक्शन तुमको पता है या एनी वन आउट ऑफ मेनी? एनी वन डायरेक्शन आउट ऑफ मेनी डायरेक्शंस. बट इफ आई से यू, केवल तुमको ये कहीं दिखता है या इधर तुम सुनते हो x component of a vector,
तो how many possible directions are there? X component of it. How many possible direction? 1 or 2? Either positive X or? So फिर से देखो यहाँ क्या लिखा हुआ था, vector has how many directions? Only 2, and those 2 directions are? So you are dealing with vector or component of it. That means component of a vector. That means component of a vector. That means component of a vector. So in one-dimensional motion, instead of vector, what we deal with? Component of a vector. ये conclude कर लो. In one-dimensional motion. In one-dimensional motion, instead of vector, we deal with component of a vector. We deal with component of a vector. इसलिए one-dimensional motion में it is not necessary to use vector notation. क्यों नहीं? Because तुम किससे डील कर रहे होगे? अब component of a vector, this leads to another concept. Component may be positive or negative. It depends on what? Choice of axis or not? Choice of axis. तो वो next line लिखो. Component of a vector may be positive or negative. That depends on choice of positive axis. That depends on choice of positive axis. For example, मान लो ये एक वेक्टर है से A, ऐसा ड्रॉ करो. इस चीज को समझना जरूरी है. ये एक वेक्टर है ना? कोई भी वेक्टर है तो उसके साथ x और y एक्सिस तो नहीं होता है ना. x और y एक्सिस तो तुम अपने to simplify that problem, you take help of coordinate system and all that. Suppose you took this to be x-axis, this is your positive y-axis, and then redraw vector A. What will you say? X component of this vector is positive or not? Write that. But कोई ये decide किया कि नहीं, I will take this to be positive y, this to be positive x. ऐसा भी ले सकते हैं या नहीं, ये बताओ पहले. Any direction can be taken as positive x, but vector remains same. This is vector A. Now for this coordinate system, how much is Ax equal to? Plus or minus? Minus. तो आई होप वो जो तुम लिखे हो ऊपर वो क्लियर हो गया ना? क्या लिखे थे देखो? Component of a vector may be positive or negative. It depends on what? Choice of positive axis. So vector remains same, but depending upon what is positive x axis, एक में प्लस आया, दूसरे में क्या आया? माइनस आया. ये पॉसिबल है हमेशा. इसका मतलब ये हुआ वन डायमेंशनल मोशन जो तुम 9th-10th में भी पढ़े हो, उसके न्यूमेरिकल को जब भी सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या डिफाइन करना चाहिए बताओ? एक एक्सिस डिफाइन करना चाहिए, एक पॉजिटिव डायरेक्शन डिफाइन करना चाहिए. आज तक किए थे तुम या क्या करते थे बताओ? तो कोई भी क्वेश्चन मिला तुम किस चीज़ के लिए तैयार रहते थे कि v = u + at यूज़ करें या ut + ½ at² यूज़ करें या v² - u² यूज़ करें? यही होता था ना. और वही हैबिट कंटिन्यूड रहता है 11th में भी. और उसके बाद क्या होता है? समझ में ही नहीं आता है कि फॉर्मूला तो हमको याद है, सब कुछ पता है, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है. तो फिर से बताओ, वन डायमेंशनल मोशन अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? डिफाइन व्हाट? एक्सिस. यू नीड बोथ एक्सिस या ओनली वन एक्सिस? क्योंकि ये 2 डायमेंशनल तो है नहीं, कैसा है? 1 डायमेंशनल. सो ऐसा लिखो, टू सॉल्व प्रॉब्लम स्टेप 1. To solve problem, step 1, define what? Positive axis. Define positive axis. Now defining positive axis simply means you will draw lines like this. ये हो गया, यहाँ x लिख दिए, ये ऐसा हो गया, ये प्लस y हो गया, ऐसा हो गया, ये y हो गया, ऐसा हो गया, ये x हो गया. मीनिंग क्लियर है? एक ही एरो रहेगा ना. दैट एरो इंडिकेट्स व्हाट? पॉजिटिव डायरेक्शन. वो एरो इंडिकेट कर रहा है, और कुछ भी नहीं लिखना है, बट एक डायग्राम होना चाहिए.
एक डायग्राम होना चाहिए। क्या इंडिकेट करने के लिए? किस डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव माने हो।